It's a mix, doctor. A very good afternoon, everyone. I'm Sayukta from Bladder Wellness, and today we have with us Dr. Ajay Kumar Gajengi, live from Mumbai, who will be discussing on a very important topic, OAB, overactive bladder. Now, what is OAB? What are the symptoms? What is the treatment like? We'll discuss about all of it. So, Dr. Ajay Kumar Gajengi is here, who is an MBBS, MSMCH in urology and genitourinary surgery, and he is also the consultant urologist and laparoscopic surgeon at Euroconsult, Borivali, Mumbai. A very warm welcome to you, doctor. Thank you, Sagiyukta, for the warm introduction, and good afternoon to everyone, and good afternoon to all the audience who are here to get the updates on OAB. सो डॉक्टर ओ ए बी ओवरएक्टिव ब्लैडर ये एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में हमने बहुत नहीं सुना है एज अ लेमन तो Yeah. लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे जब इस पर हम बात करेंगे तो हमें से ज्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो ये अग्री करेंगे कि अरे ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है उनमें से ज्यादातर में शायद वो सिम्टम्स हो भी लेकिन उन्होंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं है उतना ध्यान नहीं दिया सो टू Mhm. स्टार्ट विद डॉक्टर व्हाट इज ओवरएक्टिव ब्लैडर Now, if we go by definition, overactive bladder is a condition in which there is frequent visit to the washrooms with association in urgency and sometimes leak. But there should be no other pathology like stones, infections, which can cause this condition. So, overactive bladder is totally a different entity which is not related to any disease in the bladder, but ओके it is a entity in itself. ओके राइट एंड व्हाट आर द सिम्टम्स लाइक डॉक्टर So symptoms vary. It may be a simple frequently visiting to the washroom, or it may Okay. be like urgently going to the washroom, not able to hold. Sometimes they leak. Frequently Okay. going into the washroom in the night also sometimes. So Mm-hmm. these are the symptoms, and these symptoms are so common in the population, but this is ignored. So Right. that's why the awareness is more important in such cases. So they get at least the treatment at appropriate time. Right. You very well said that these are very common symptoms but are mostly ignored. What happens, even when we talk to our people, at our folks at home or, elderly people, they'll often say कि हमारी तो एज हो रही है या हमें तो डायबिटीज है या कोई और इशू और वो कहते हैं कि एज के साथ तो ये होता ही है तो we'll have to live with it. Would you like to explain to our viewers why we just don't have to live with it? There is a treatment option available as well, and we can get relief from OAB. सो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है एक्चुअली, लेकिन नज़रअंदाज किया जाता है। एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये उम्र से हुए चेंजेस अपने बॉडी में है और उसके साथ ही हमें चलना है। बट इसका ट्रीटमेंट है, और जबकि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और अगर उसे ट्रीट नहीं किया तो उससे बहुत कुछ तकलीफें हो सकती है। डे टू डे लाइफ में नुकसान हो सकता है, जैसे नींद डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे हमारे काम काज में हमें डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे हमारे ट्रैवल में डिस्टर्ब हो सकता है। सो व्हेन यू हैव एन ऑप्शन, देन बेटर टू कम गेट इट ट्रीटेड। So there is treatment available. जरूरत बस इस बात की है कि अगर ये symptoms हैं तो हम एक क्वालिफाइड यस। यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे सही सलाह लें। जब कोई पेशेंट आपके पास आता है डॉक्टर इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स लेकर क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं मेडिकल जिसमें इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं जैसे मैंने बताया डायबिटिक जो है उनको कई बार बार फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी या जो आपने कहा के इश्यूज ये होते हैं दूसरे भी कई यूटीआई जिन्हें हैं या हो सकता है दूसरे तरह के इश्यूज है प्रोस्टेट है enlargement ऑफ प्रोस्टेट उसमें भी काफी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं होते तो हैं। जब कोई यस। पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स लेकर आपके पास आते हैं तो कोई टेस्ट है नॉर्मली जो आप रिकमेंड करते हैं और जस्ट बाय एग्जैक्टली। कलेक्टिंग हिस्ट्री एक्सेट्रा या यू क्या अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनका डिटेल्ड हिस्ट्री लिया जाता है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन में। बहुत सारी चीज़ें डाइट की वजह से भी हो सकते हैं, स्पेशली जो स्मोकिंग करते हैं, स्पेशली जिनका डाइट बहुत हेवी है, मोर ऑफ नॉन वेजिटेरियन डाइट है, जिनका एक्सरसाइज से कोई नाता ही नहीं। तो ये हिस्ट्री में ही हमें आधा
पता चलता है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, और इन छोटी-छोटी चीज़ों को करेक्ट करने से बहुत सारा फ़ायदा उनके ओवर एक्टिव ब्लैडर में भी दिखाई देता है। नाउ एग्ज़ामिनेशन में भी हमें बहुत कुछ पता चलता है, लोकल एग्ज़ामिनेशन, जेनेटल एग्ज़ामिनेशन, ये सब में भी हमें पता चलता है कि कोई लोकल बीमारी है क्या। अपार्ट फ्रॉम दिस, रूटीन टेस्ट हम कराते हैं, यूरिन रूटीन, सोनोग्राफी, और ज़रूरत पड़ी तो एक एडवांस टेस्ट होती है, उसे बोलते हैं यूरोडायनामिक स्टडीज़। अच्छा। नाउ सोनोग्राफी में भी हमें ये अंदाजा आ जाता है कि प्रोस्टेट कितना बड़ा है, स्पेशली इन मेल्स, एंड फीमेल्स में भी हमें अंदाजा आ जाता है कि यूरिन पूरी तरह से एम्प्टी हो रहा है कि नहीं पेशाब की थैली में से, या पेशाब की थैली बराबर से काम कर रही है कि नहीं। काफी कुछ अंदाजा इन सोनोग्राफी और रिपोर्ट से भी पता चलता है। और यूरिन रूटीन में हमें ये पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी ओवर एक्टिविटी होती है, बट वी कॉल देम एज सेकेंडरी। Now there is overactive bladder primary, where there is no specific cause, but when overactivity is due to something else, like किसी किसी को इन्फेक्शन है, किसी को डायबिटीज है, किसी को स्टोन्स है, तो हम्म। उन्हें हम सेकेंडरी ओवरएक्टिव ब्लैडर बोल सकते हैं। बिल्कुल। और अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर है, तो फिर आगे का ट्रीटमेंट, आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह से आप डिसाइड करते हैं? यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अभी हमें पता है कि ओवरएक्टिव ब्लैडर है, वी हैव रूल्ड आउट अदर कॉजेस, कोई और कारण नहीं है इस ओवर एक्टिविटी की। तो फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे हम जिन कारणों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन हम्म। कारणों को ट्रीट करना, लाइक रेगुलर एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, रेगुलर फ्लूइड इनटेक। इफ पेशेंट को ऐसा लगता है कि रात में उनको बार बार उठना पड़ता है, सो बेटर इन सच पेशेंट्स यू हैव अर्ली डिनर, लेस intake of water in the night, but compensate it in the daytime. Less intake of tea, coffee. Those who are drinkers avoid alcohol. So diet modification, weight reduction, all these will help. So initially we start with behavioral changes, and there are some therapies like bladder training. हम पेशेंट्स को बोल सकते हैं कि आप खुद से यूरिन को रोकने की कोशिश करो। इफ द पेशेंट हैज अ टेंडेंसी टू पास वेरी फ्रीक्वेंटली, लाइक एवरी हाफ एन आवर, देन हम्म। वी कैन टेल देम कि यू जस्ट ट्राई टू होल्ड फॉर अनदर हाफ एन आवर। दिस इज कॉल्ड ब्लैडर ट्रेनिंग। Then other is pelvic floor muscle exercises. These help राइट। to control the pelvic muscles and hold the urine. So there are हम्म। therapies, and these are very much means useful apart from the medicines. अगर ये सब भी काम नहीं करते हैं, then we go for medications. अभी medicines, we have a variety of medicines in our basket. If drug A is not working, then go for B. B is not working, then C. So this is what we usually plan a treatment for OAB. तो मेडिकल मैनेजमेंट और जैसा उससे पहले आपने बताया बिहेवियरल चेंज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसी से बात बन जाती है या सर्जरी तक की भी नौबत आती है डॉक्टर? Actually, there is no role of surgery in such cases, except for in cases where it is secondary. Secondary to what? Like कभी स्टोन है तो स्टोन को ट्रीट करो, प्रोस्टेट है राइट। तो प्रोस्टेट को ट्रीट करो, कोई स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल लेवल पे प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट करो, कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है जो ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसको ट्रीट करो, यानी सो सर्जरी इज ओनली व्हेन इट इज सेकेंडरी टू समथिंग। प्राइमरी ओएबी के लिए कोई सर्जरी नहीं है। इट इज ओनली लाइफस्टाइल, बिहेवियरल एंड मेडिकल मैनेजमेंट। ये सुन के तो ट्रीटमेंट और आसान लग रहा है। जैसा आपने बताया ज्यादा फोकस बिहेवियरल एग्जैक्टली। चेंजेस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर दिया जाता है, तो हो सकता है जिस कंडीशन को हम बहुत समय से जो हमारे लाइफस्टाइल को हैम्पर कर रहा था, उसे हम सिर्फ इसलिए सह रहे थे कि हमें लग रहा था पता नहीं ट्रीटमेंट कैसा होगा, लेकिन हो सकता है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो वो कुछ आपके बिहेवियरल चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दे और उसी से स्थिति जो है ये नियंत्रण में आ जाए। तो इसलिए डरे नहीं, और ये पूरा एग्जैक्टली। सेशन कराने का हमारा उद्देश्य भी यही है, ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम समझ सके कि ओएबी क्या है, किस तरह से बचा जा सकता है, हुआ है तो किस तरह से इलाज संभव है। तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात आपने की और उसमें एक बात का आपने जिक्र किया कि इवनिंग के बाद पानी नहीं पीना है। कई लोग हैं जो रात में बार बार उठते हैं और जैसे उठे फिर सोने से पहले पानी पी लिया, या सोने से पहले भी दूध पीना, पानी पीना, ये कई लोग बहुत नॉर्मली करते हैं। एग्जैक्टली। जितनी बार सोने जाएंगे फिर एक गिलास पानी पी लिया।
और इससे जिस तरह से आपने बताया लग रहा है कि शायद इससे भी वो जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ सकते हैं। तो पानी पीने को लेकर, क्योंकि एक आम धारणा रहती है कि ढेर सारा पानी पीना है, एडिक्वेट वाटर की जगह हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। तो वो ज्यादा पानी की क्या डेफिनेशन है, कितना पानी Yeah, पीना चाहिए, exactly. पीना When चाहिए? I told this, I told specifically to compensate it in the daytime. राइट। Right. So it should not be like we are decreasing the total volume of water intake. Volume हम्म। of water intake should be at least 2.5 to 3 liters per day. इन द हम्म। नाइट, क्योंकि डिस्टर्ब ना हो आपकी स्लीप, इसलिए हम्म। नाइट में एज पर योर थर्स्ट थोड़ा ही पानी पियो। अगर हम्म। ये प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन ड्रिंक इन द वाटर नाइट, इन द नाइट ऑल्सो। ये हम्म। थेरेपी जस्ट उन पेशेंट्स के लिए जिनको रात में प्रॉब्लम है। फॉर अदर नॉर्मल पर्सन यू कैन हैव वाटर, देयर इज नो इशू एट नाइट। राइट। कई लोग हैं जो बार बार वॉइड करने के लिए जाते हैं वॉशरूम, रात में बार बार उठते हैं, लेकिन वो उनके बिहेवियर का एक पार्ट बन गया है, उनका एक रूटीन सेट हो गया है। उनको इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता, उनको लगता है रात में 2-3 बार तो सभी उठते हैं, या दिन में बार बार 1 घंटे में वॉशरूम जाना टू वॉइड, ये उनको कॉमन लगता है। कई लोग जानते ही नहीं है कि वो जो बार बार जा रहे हैं वो एक्चुअली बहुत ज्यादा है। उस क्लैरिटी के लिए डॉक्टर, कितनी बार जाना सामान्य है, रात में कितनी बार उठना सामान्य है, और कितनी बार ऐसा हो जिससे हमें लगे कि नहीं नहीं अब तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए? या एग्जैक्टली। सो दिस इज अ मिथ कि हमें 2-3 बार जाना पड़ता है, दिस इज एन एज रिलेटेड चेंजेस। डेफिनेटली एज हम्म। रिलेटेड चेंजेस की वजह से ओवर एक्टिविटी ऑफ द ब्लैडर बढ़ती है, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। तो हमें उसे ट्रीट करना है। नॉर्मली एक बार भी नहीं उठना चाहिए आइडियली, बट हम्म। एज एज एडवांसेस एक बार उठना, वी एक्सेप्ट इट, वन टाइम हम्म। इज एक्सेप्टेबल। बट मोर देन दैट, लाइक 2 टाइम्स 3 टाइम्स, देन वी नीड टू इंटरवेन। हमें फिर ट्रीटमेंट, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उस पॉइंट्स में, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बिहेवियरल लाइक वाटर इनटेक वाला, अदर फैक्टर्स को डील करना जो उनके लाइफस्टाइल में है। सो ये इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली, अगर उससे भी नहीं हो रहा है, देन मेडिकेशंस। बिल्कुल। या डॉक्टर, आपने बताया, और शुरू से हम इस बात पे डिस्कस भी कर रहे हैं कि ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है हमारा, जो लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बहुत हैम्पर करता है। कई ऐसे लोग हैं जो सोशलाइज करने से डरते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाने से, ट्रैवल करने से डरते हैं। महिलाओं में तो लीकेज का प्रॉब्लम इतना आम है कि तो वो कई बार बाहर जाती ही नहीं है कि कहीं लीकेज ना हो जाए। ऐसे में एक तो है कि अगर इसको हम इग्नोर करते रहें, या वी कीप ऑन सफरिंग इन साइलेंस एंड डू नॉट कम एंड टॉक टू अ डॉक्टर, ट्रीटमेंट ना कराएं, तो एक तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो हैम्पर हो ही रहा है। उसके अलावा भी क्या किसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? yes, yes, already as you are only telling, it hampers your social life. You're not राइट। going anywhere. So your interaction with your own people becomes less. Basically, for a woman, especially women, it becomes a social stigma. They are हम्म। like, "Ah, leakage ho raha hai, we can't go anywhere." So all this needs to be educated. Ki this is not a problem which needs कि you should stay at home. We should educate them that it is treatable, and you should try to take treatment or medicines, and then everything will be settled, everything will be solved. Hmm? हम्म। राइट, तो उसका ट्रीटमेंट है, तो उसको भी हम अपनी लाइफ को भी, उसकी क्वालिटी को भी क्यों हैम्पर करें, ये जरूरी Yes, है। yes, आपने जिक्र किया डॉक्टर पेल्विक फ्लोर मसल्स का, और किस तरह से वो वीकन हो जाते हैं, तो भी कई बार ये समस्या होती है। महिलाओं में तो बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली exactly, वजाइनल डिलीवरीज जिनकी हो, एक से ज्यादा डिलीवरीज जिनकी exactly. हो। और कीगल फ्लोर एक्सरसाइजेस का भी आपने जिक्र किया, तो हम चाहेंगे उस पर आप थोड़ा इफ यू कैन शेड सम मोर लाइट ऑन दैट, हाउ Yes. इम्पोर्टेंट इज दैट? Now, this is an important topic. Females, especially those who have already undergone so many pregnancies, normal deliveries, right? हम्म। Now, during their menopause, hormonal changes also affect the muscle quality. Now, estrogen levels decrease during menopause. Some other हम्म। hormonal changes also cause overactivity of the bladder. So, during this period, they should consult their gynecologist also. Hormone replacement therapy, ये तो नॉर्मल एक आजकल ट्रीटमेंट मोडालिटी हो गया है दोज हु आर नियरिंग देयर menopause. So this needs to be done. Then Kegels exercises, this is very simple exercises just to strengthen your pelvic floor muscles. So हम्म। if आपके डिलीवरी के वजह से या फिर आपके लेबर्स की वजह से pelvic floor muscles लूज हो जाते हैं, then it becomes difficult to control the urination.
राइट? सो उसके लिए कीगल्स एक्सरसाइजेस टू टाइटन देम आर वेरी हेल्पफुल. So this is called pelvic floor muscle strengthening. Indirectly, what we call as Kegels exercises, and they help a lot. ऐसा नहीं कि राइट। हमें सिर्फ मेडिसिन का ही सहारा लेना है. Apart from this, first try this and then go for medications if they are not helping you. राइट, और इसी के आप शुरू से इस बात पर जोर भी दे रहे हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी वेट कंट्रोल पर वर्क करना, फिजिकल एक्सरसाइजेस करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Exactly. Yes, 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 yes. बहुत सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के भी हमें मिल रहे हैं। एक सवाल मैं लेना चाहूंगी सिया जैन का, इस पर लगातार हम बात भी कर रहे हैं। इज ओएबी अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग? Yes, normal part of aging इसे बोला जा सकता है definitely, because as age advances there are changes in your body. Now, for example, graying of hair is a normal phenomena. Wrinkling on राइट। your face is a normal phenomena. Similarly, ब्लैडर में जो कोलेजन होता है, ब्लैडर में जो प्रोटीन्स होते हैं मसल्स के आस इर्द, वो चेंज होता है. कोलेजन टाइप 1 becomes to कोलेजन टाइप 2. सो एफिशिएंटली जो कॉन्ट्रैक्शंस होनी चाहिए ब्लैडर के, वो नहीं हो पाते. इट बिकम्स irregular contractions and half-hearted contractions, because of which there is urgency, frequency, and sometimes the contractions are so irregular and so unauthentic कि वो लीक भी कर जाते हैं. राइट, बिल्कुल। दीपक सक्सेना है, उनका सवाल है, कैन पुअर स्लीप लीड्स टू ओएबी? It will be like vice versa. OAB can lead to poor sleep. पुअर स्लीप। तो अगर हाँ, if आपको नॉक्चूरिया है, that is getting up in the night, that can disturb your sleep. Sleep itself means lack of sleep will not cause OAB. अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है अब जब जैसा आपने बताया कि ओएबी कैन लीड टू लैक ऑफ स्लीप, तो इससे एक तो हम ये भी मान रहे हैं कि एक सर्टेन एज के बाद ओल्ड एज के व्यक्ति हैं जिन्हें स्लीप में बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, उन्हें बार बार उठना पड़ रहा है, तो वो भी उनके ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि वी ऑलवेज एम्फेसिस की एक फुल 6 7 8 आवर स्लीप जरूरी है, अगर कोई बार बार उठ रहा है 2 बार 3 बार, तो वो भी उनके हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। और दूसरा, इससे रिस्क भी डॉक्टर बढ़ जाता है, कई बार बाथरूम्स में ध्यान नहीं रहता, बहुत डाउजी स्टेट में हम होते हैं, स्लिप हो सकते हैं, और बुजुर्गों के साथ तो ये कंडीशन और मुश्किल हो सकती है। तो एग्जैक्टली बहुत सारे फ्रैक्चर्स जो होते हैं ओल्ड एज में, दिस इज ऑल हाँ। बिकॉज ऑफ गेटिंग अप लेट इन द नाइट फॉर यूरिनेशन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप. So this problem indirectly will address to improve the overall quality of a person's life, not only in terms of bladder health but also overall health. It will हम्म। prevent these sleep disturbance. It will prevent frequent falls while going to the bathroom, washroom. It will also indirectly prevent disturbance of sleep of all others who are sleeping in the same room. See, राइट। राइट। so there are many things concerned with that. हम्म, बिल्कुल। तो इसे एक बहुत आम साइंस सिम्टम्स की तरह हम ना लें, इसको लेकर सीरियस होना बहुत जरूरी है। और अगर जो भी ये व्यूअर्स सुन रहे हैं, ये सेशन देख रहे हैं, अगर आपको या आपके घर में किसी को आपको लगता है कि बार बार जा रहे हैं वॉशरूम पेशाब करने के लिए, या रात में बार बार उठ रहे हैं टू अवॉइड देमसेल्व्स, प्लीज 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 टॉक टू देम। और अगर आपको ही हुआ है तो प्लीज गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, और इस केस में आपको मिलना है क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से, उनसे संपर्क कीजिए। बहुत आसान तरीका है ट्रीटमेंट का, हो सकता है दवाइयों की नौबत भी ना आए, जैसा बार बार हम बोल रहे हैं, कई बार हम डरते हैं कि ऐसा ना हो कोई सर्जरी कर दे, ढेर सारी दवाई दे दे, हो सकता है उसकी नौबत ही ना आए, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक हो जाए। लेकिन जरूरी है कि हम एक डॉक्टर को दिखाएं, एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। Yes. कैन गोएबी कॉज क्रैम्प्स? अमित जाटव पूछ रहे हैं। या डेफिनेटली, ये अगर आपके ओवर एक्टिविटी की वजह से सुप्राप्यूबिक एरिया यानी ब्लैडर एरिया की जो मसल्स है वो इफेक्ट हम्म। होते हैं, यू विल हैव क्रैम्प्स. हम्म। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैम्प्स इन द लोअर एब्डोमेन कैफीन, बेसिक. राइट, कैफीन कंजम्पशन को लेकर कई सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि क्या कैफीन कंजम्पशन से ओएबी हो सकता है, या वो मतलब बढ़ावा मैंने मिल सकता है? ऑलरेडी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 2 पॉइंट्स बताए थे, टी हम्म। कॉफी एंड नॉन वेज. So definitely it has a role, and especially those patients getting up in the night, evening का टी कॉफी तो उन्होंने बंद कर देना चाहिए.
बिल्कुल। Yeah. एक हमारी व्यूअर हैं रिया साथी, पूछ रही हैं क्या कोई एक्सरसाइज है जिससे ब्लैडर इश्यूज से, ओएबी से बचा जा सकता है? Already we discussed this, that is pelvic floor muscle exercises, bladder training. So these are simple, non like medical maneuvers which can help you train your bladder, help your pelvic floor muscles regain strength, and develop a good voiding diary. बिल्कुल। डॉक्टर, एक तो ये बात हुई कि अगर ओएबी है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका इलाज लेना चाहिए, और इससे जो है हमारी स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी, जो भी परेशानियां हैं वो नहीं होगी। दूसरा ये कि इससे जुड़े, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, बहुत सारे टैबू इश्यूज भी हैं। आज भी हमारी सोसाइटी में कई लोग पेशाब करना, रात में उठ के पेशाब जाना, इन सब चीजों को लेके बात करने में बहुत हिचकिचाते हैं और वो कई बार आते नहीं है। अगर इसको ट्रीट न किया जाए तो क्या कोई सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की तो हमने बहुत बात की है, लेकिन दूसरे भी क्या ब्लैडर को या दूसरा जो यूरिनरी सिस्टम है उसको भी क्या तकलीफ होती है अगर बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया जाए? या अगर लंबे समय तक इसको इग्नोर किया जाए तो कोई कुछ कुछ पेशेंट्स, यानी नॉट एवरीवन, सम पेशेंट में डेवलप अ कंप्लायंस इश्यू, द ब्लैडर कंप्लायंस में डिक्रीज। ओके, अगर ब्लैडर की कंप्लायंस कम होती है तो इट में इफेक्ट समटाइम्स किडनीज ऑल्सो। सो यूरिन जो नॉर्मली बाहर निकलनी चाहिए वो रिफ्लक्स करके ऊपर चला जाए और किडनीज में प्रॉब्लम दे, ऐसा भी हो सकता है, बट इट इज रेयर टू कॉज हम्म, सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज इन केसेस ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर। बिल्कुल। आपने अपनी बात में एक बार ये भी कहा कि कई बार ब्रेन सिग्नल नहीं देता है, कुछ न्यूरो ऐसी कंडीशन अगर हो डॉक्टर, जिसमें ब्लैडर को यस, सही सिग्नल ही नहीं मिल पा रहे हो, तो वो भी एक बड़ा यस, रीजन ओएबी का होता है। इस पर हम चाहेंगे आप थोड़ी बात करें, किस तरह से होता यस, है वो? यस, यस। काफी पेशेंट्स जो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, जिनको कभी स्ट्रोक आया है, जो पार्किंसन से पीड़ित पेशेंट्स है, जो डिमेंशिया के पेशेंट्स है, सो कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, नॉर्मली ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल टू द ब्लैडर वाया स्पाइनल कॉर्ड, राइट? अगर वो सिग्नल सही तरीके से ब्लैडर को नहीं पहुंचता है, देन इट बिकम्स ऑटोमेटिक ब्लैडर, यानी ब्लैडर अपने हिसाब से फिर काम करना चालू कर देता है। That is called automatic bladder. So automatic bladder is one of the forms of OAB. राइट। तो ऐसे में भी ज़रूरी है कि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। कई महिलाएँ हैं वो पूछ रही हैं कि कई बार ऐसा होता है, जैसे हम बाहर जाने से एक तो डरते हैं कि बार-बार वॉशरूम मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक और बड़ी समस्या ये होती है कि क्लीन वॉशरूम्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उन्हें लगता है कि अगर क्लीन वॉशरूम्स नहीं हुए तो ऐसा ना हो कि वो एक परेशानी तो है ही बार-बार वॉशरूम जाने की, कोई और इन्फेक्शन भी हम ले आएँ। तो ऐसे में क्या करें डॉक्टर? Yes, yes. Now clean washroom and OAB थोड़ा सा अलग अलग है। क्लीन वॉशरूम से हमारा कहना है कि इन्फेक्शन ना हो। अगर राइट। अनहाइजीनिक कंडीशंस में आप यूरिन करते हैं, स्पेशली फीमेल्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल, इसमें क्या होता है, वी हैव टू सिट एंड यूज द टॉयलेट्स। मेल्स हुँ, के लिए एक ऑप्शन है कि दे स्टैंड एंड डू इट। सो राइट। फीमेल्स में ही अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि दे गेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंड रिकरेंट यूटीआई is something which is more common in patients who are using public toilets, जिनका लोकल हाइजीन भी अच्छा नहीं रहता है फिर। हुँ, बिल्कुल। अ, ये भी यहाँ पे डॉक्टर आपसे जान लेना चाहेंगे, ओवर एक्टिव ब्लैडर पर हम बात कर रहे हैं और आपने एक चीज़ बताई कि कई बार सेकेंडरी रीज़न्स की वजह से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है यूटीआई हो सकता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो या दूसरी चीज़ें। क्या यस, ऐसा भी होता है कि हमने जो सेकेंडरी कॉज़ है उसको ट्रीट कर दिया, उसके बाद भी राइट। सिम्पटम्स बने हुए हैं, मतलब ओएबी भी है और साथ में सेकेंडरी तो जो देन हाँ, है? देयर में बी कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी ओएबी विद सेकेंडरी ओएबी, राइट? सो जब ये रहता है तो द सिम्पटम्स आर वेरी सीवियर। सो एटलीस्ट अच्छा। सेकेंडरी कॉज हम निकाल देते हैं तो ओनली प्राइमरी ओएबी के जो सिम्पटम्स हैं, दैट विल बी लेस, एंड दैट विल कॉज लेस प्रॉब्लम। लाइक, सो सेकेंडरी कॉजेस जैसे प्रोस्टेट हो, स्टोन हो, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उसे हम ट्रीट करें, इन्फेक्शन को ट्रीट करें, तो ऑटोमेटिकली 90% सिम्टम लोड कम हो जाता है। बिल्कुल।
डॉक्टर, एक बार फिर अगर आप हमें बताएं कि वो कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिनको करके या एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं ओएबी में, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो बाद में जुड़े हैं सेशन के, और अब चूंकि एक तरह से हम कंक्लूडिंग पार्ट में है, तो वो ये जानना यस। चाहते हैं कि क्या करें जिससे हम बच सकें। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, डाइट, अवॉइड टू मच ऑफ स्पाइस, सॉल्ट, टी, कॉफी, नॉन-वेज। ओबेसिटी इज अ वेरी गुड रिस्क फैक्टर, सो उससे अवॉइड करो। एंड कॉन्स्टिपेशन, आई मे नॉट हैव टच दिस पॉइंट, बट कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग ओएबी। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? जब हमारी डाइट में फाइबर नहीं होता है, हमारी डाइट में ज्यादातर मैदा होता है, नॉनवेज होता है, ऐसे पदार्थ जो पचन नहीं होते। सो डाइट इज वन ऑफ द फैक्टर्स वी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। सेकंड, जैसे हमने और ये भी डिस्कस किया, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से एक तो आपका पचन भी अच्छा हो जाता है, सेकंड आपका ओबेसिटी भी नहीं होता है, एंड इससे ओवरऑल ब्लैडर हेल्थ इंप्रूव रहता है। और उस रेगुलर एक्सरसाइज में भी आप कीगल्स एक्सरसाइज को एज ए डेली रूटीन भी किया कर सकते हैं। अदर फैक्टर्स जैसे कि स्मोकिंग, वाटर इनटेक मैनेजमेंट इन द नाइट, स्पेशली उन पेशेंट्स जिनको रात में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस छोटे छोटे, अवॉइडिंग पब्लिक टॉयलेट्स जिनको रेगुलर इन्फेक्शन होता है, ट्रीटमेंट ऑफ दी सेकेंडरी फैक्टर्स, वो जैसे कि प्रोस्टेट इन्फेक्शन, ब्रेन कंडीशन, स्पाइनल कॉर्ड कंडीशन, स्टोन कंडीशन। सो ये ओवरऑल आप सारे फैक्टर्स को डील करो तो ऑटोमेटिकली ओएबी के सिम्टम्स और ओएबी से रिलेटेड तकलीफें कम होंगी। बिल्कुल। एंड ब्लैडर लास्ट, ट्रेनिंग, जी मेडिसिन। डॉक्टर, आपने ब्लैडर ट्रेनिंग की भी बात की थी, और मैंने कहीं ब्लैडर डायरी के भी बारे में पढ़ा था कि डॉक्टर्स कई बार इस तरह के सिम्टम्स लेकर जो आते हैं उनसे ब्लैडर डायरी मेंटेन करवाते हैं, वो क्या है? Now, bladder training is something which we have to have control over our own bladder. Now, राइट। as an example, last time also, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, those patients को जो 30 मिनट्स तक होल्ड कर पाते हैं, and most of these patients have this urge when they are not doing something, like they are sitting idle and just उनका ध्यान उनकी ब्लैडर की तरफ जा रहा है। But same person, if he is not idle and doing some work, he is busy with some work, will not have that urge only because वो sensations जो ब्लैडर की तरफ जा रहे हैं उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं डाइवर्ट होता है। सो ब्लैडर ट्रेनिंग ऐसी चीज है जिसमें हम अपना टाइम जो 30 मिनट्स को है, इनिशियली 40 करें, फिर 50 करें, धीरे धीरे उसे इंक्रीज किया जाए। ऑन एन एवरेज 2 आवर्स तक होल्ड करें तो इट इज अ वेरी गुड टाइम वी कैन कंसिडर। एंड राइट। ब्लैडर डायरी की बात की जाए, तो ब्लैडर डायरी इज अ डायग्नोस्टिक मोडालिटी, इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। जिससे कि हमें अंदाजा आए, ब्लैडर डायरी में कुछ चीजें हमें पेशेंट्स को लिखाया जाता है। जैसे हम पेशेंट को एक पेपर देते हैं जिसमें टाइम, कितना लिक्विड लिया और कितना यूरिन पास किया और कितने बजे किया। एग्जाम्पल, ये डेट 14 को 9 बजे हमने आधा लीटर पानी पिया, समझो 10 बजे एक 200 ml यूरिन किया, तो ये पूरा 3 दिन का एक चार्ट मेंटेन करते हैं, जिससे कि ये चार्ट देख के हमें अंदाजा आता है कि अरे हाँ, पेशेंट ने 9 बजे पानी पिया और 10 बजे भी यूरिन किया, 11 बजे भी यूरिन किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा किया, 20 ml किया, कभी 50। तो दिस आर ऑल डायग्नोस्टिक ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर। जो पेशेंट्स अच्छा वॉल्यूम पास करते हैं, अरे हाँ 300 ml पास किया, फिर से 2 घंटे के बाद 300, सो उसमें हम ये भी बोल सकते हैं ये पॉलीयूरिया है, यानी पानी ज्यादा पीने की वजह से हुआ है। एंड डॉक्टर अजय, बिफोर वी वाइंड अप दी होल सेशन, कोई टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? Yeah, definitely. So, those who all are suffering from the symptoms of OAB should not consider as a normal routine phenomena. You should definitely try to consult your nearest urologist, take advice, take regular medical help, and if required, medical treatment in the form of medications. This will definitely help a long way to treat your OAB symptoms as well as regain your confidence so that you can travel, so that you can do all your social work, so that you can have a better life. Thank you. Absolutely. Thank you so very much, Dr. Ajay. It was wonderful talking to you. Thank you for your valuable time and making this whole session so informative. Thank you.
Thank you so much. Thank you. Thank you. And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates, stay connected on our FB page, Bladder Wellness. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you and have a great day ahead. Goodbye.